June on Z5 with Brown. The teaser and the trailer have already intrigued many. It looks a very, very complex thriller and a very interesting one at that. Surya, welcome. Thank you for being with us. Thank you so much. Thank you so much for your time. This is, the big June release on Z5. Summer always brings with it big releases. This time, of course, it's yours. So, how Thank you. excited are you for I'm hearing very what people have excited. to say? Yeah, I'm very excited because last month only Andekhi season 4 came out, Yeah. and now this show is coming out. I think it's like a dream I'm living right now. Yeah, okay, great. Also, I have to ask you about how it was playing this police officer because, we are seeing both you and Karishma have a lot of layers, which Right. of course will get uncovered when it releases. But tell us about how it was playing this cop for you and what your first reaction was when the team came with this Right. project. So my first call was with Abhinay sir. Mm. He wanted to meet me, but unfortunately I was shooting and I was not in the town, and I was in Goa. So I still remember I was sitting in my room, and in the evening we started the conversation and Zoom call, and it went on and on and on and on, and then वो dinner time हो गया था. Acha. So yeah, तो उसी दिन मुझे चल गया था इस चीज का पता कि he is one of the director who will give you time. Yeah, So that is very important for me because I'm a director's actor. yeah. And yes, we did a lot of workshops Mm. together, even with Karishma Kapoor, with Abhinay sir solo, and Mm. then in a group also. Mm. And I strongly feel workshops really helps you when it comes to finding layers and details Mm. in the character, Mm. because writers ने अपना काम कर दिया है, आपको स्क्रिप्ट दे दी है, Yeah, एंड उस स्क्रिप्ट को आप और आगे किस तरीके से लेके जाओगे, दैट इज व्हाई दे कमिंग टू यू एंड टेलिंग यू दैट दिस कैरेक्टर यू विल डू yeah. एंड ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल. सो वो टेबल पे चीजें वर्कशॉप्स में आती हैं, एंड आई एम काइंड ऑफ एक्टर लाइक आई ड्रॉ अ सर्कल इन माय sketchbook, and I go Okay. to my director ki please Acha. fill with colors so that I can see what all colors he Yes, likes to yes, explore more, and yes. then you get the shade. So I still remember the first workshop we did in Mumbai, and Mm. I came down to Mm. Bombay and for a day and then went Mm. back to Goa. Mm. तो बहुत ही डिटेल्ड वर्कशॉप थी वो. उन्होंने पिक्चर्स, एक बोर्ड था, उस पे Yes. उन्होंने कुछ शॉट्स लगा रखे थे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट मूवीज, Mm-hmm. एंड टू गेट द फील कि हम कलर्स किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं इन द शो Amazing. with the Mm. lighting. This Yeah. is the kind of feel we are going with, and this is the darkness of the show. This is Yeah. the intensity of the show, and this is the dark humor in the show. Obviously he's Abhinay Deo, so dark Yeah. humor तो होगा ही थोड़ा बहुत. Yeah. जितना हम एक्सप्लोर कर सकते थे Yeah. हमने किया, Mm. एंड इट विल कम आउट. मतलब अभी जब ऑडियंस देखेगी तो Mhm. पहचानेगी कि वो कितना Yeah. नाइसली लैंड हुआ है. Yeah. And yeah, so with the help of director and his vision, uh, I jumped on this and I was like, okay, let's go and let's do it. Okay. And coming back to your other question, like how I prepared for this character. Yes. So as I told, we did a lot of workshops, Mm-hmm. and उसके साथ मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं जी. हर कैरेक्टर में ढूंढता हूँ, द बॉडी लैंग्वेज Okay. ऑफ माय कैरेक्टर. Mm. एंड जैसे मुझे पता चला था कि फर्स्ट रीडिंग पे कि he has a daughter and Mm-hmm. he's married, but Mm-hmm. obviously you will see that he's alone. Mm-hmm. There's no one. Mm. They are dead. Yeah. But again, you know, to fill that blank, कि Yeah. क्या है चीज. सो आई गेन लिटिल वेट सो दैट आई कैन फिट इन द कैरेक्टर. Okay. जब मुझे एक बार फिजिकलिटी मिल जाती है, देन इट बिकम्स इजी Yes. पाथ फॉर मी, एंड वो पाथ हमें ही ढूंढना पड़ता है. अदरवाइज आई मैं चला जाता, नॉर्मली भी Yeah. शूट कर लेता विदाउट Yeah. गेटिंग इनटू फिजिकलिटी. Yeah. बट वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क नहीं होता. बिल्कुल. तो वो एक चीज जरूरी थी, सो दैट आई लुक लिटिल जी. चबी, आई Yeah. लुक लिटिल ड्रेन्ड आउट. सो Yeah. वो सब चीजें ऑब्वियसली वी वर शूटिंग इन कोलकाता. सो Okay.
मॉर्निंग टू इवनिंग जब हम करते थे, ड्रेन्ड आउट हम वैसे ही हो जाते थे, इट वाज वेरी हॉट एंड हाँ. ह्यूमिड. तो या सो फिजिकलिटी एंड देन द टोन एंड अभिनय सर ने एक और चीज ऐड की थी कि ही इज फ्रॉम बिहार, ही इज नॉट Okay. फ्रॉम कोलकाता. तो देन आई वाज लाइक कि ओके, इफ ही इज फ्रॉम बिहार, सो हम उसका डायलेक्ट कितना यूज कर रहे हैं. तो उन्होंने बहुत इजी कर दिया था मेरे लिए कि ही वाज लाइक व्हेनेवर ही कम्स बैक होम Mhm. टू हिज डैड, Mhm. we will see a little tonality of Mhm. Bihari Mhm. language or something. Mhm. But once he comes out, अपना जॉब पे है, प्रोफेशनलिज्म में आ गया, जी. तो वो अपना नॉर्मली बात करता है हिंदी. Okay. तो इट्स लाइक फेयर इनफ, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी है ये जानना कि हम उसको कितना एक्सप्लोर करेंगे. और बिल्कुल. ये भी नहीं हो सकता कि अरे हम वो वहां पे सेट पे कर लेंगे, वो सेट पे हाँ. नहीं हो पाता. हाँ. मैं सेट से पहले ही रेडी होके जाता हूँ. आई डोंट वेस्ट टाइम Yeah. ऑन सेट बिकॉज नहीं, अमेजिंग. हाँ, सो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कशॉप हाँ. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. जी. जी. सो एंड ऑफ या कोर्स दिस डायरेक्टर का दिस इज विजन. हाउ आई अप्रोच माय कैरेक्टर. अमेजिंग. एंड डायरेक्टर का विजन बहुत इंपॉर्टेंट है. अमेजिंग टू हियर द प्रोसेस दैट यू हैव सूर्य, और इस वजह से तो आप हमेशा कमाल करते हैं विद एवरी कैरेक्टर दैट यू प्ले एंड गेट. हाँ, थैंक यू. बट यू नो ऑल्सो करिश्मा के लिए दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट रोल. आई थिंक शी इज नेवर बीन seen in a role like this before. This is what I was talking to Abhinay Dev also about. राइट. And he said, you know, she was a bit hesitant at first, but of course she dived straight into it and she's looking great as well. आपके लिए कैसा रहा काम करना करिश्मा के संग, वो भी एक ऐसे किरदार के लिए which is very different from what she's done before? Yeah, being a fanboy of Karishma Kapoor to um, his co-actor was a great journey for me. मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि I'll shoot with her, but जी. definitely मुझे ये तो पता है कि मैं कई सारे लोगों के साथ काम करूंगा. एंड मैं आया हूँ बॉम्बे में, तो आई एम हियर टू स्टे. Yeah. बट अर्ली लाइफ में मुझे इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो मैंने नहीं सोचा था. आई थिंक गॉड इज वेरी काइंड. एंड अगेन कमिंग बैक टू करिश्मा कपूर, शी इज अ वेरी humble human being. Okay. We all know that she's a superstar. She's a successful heroine, and उन्होंने benchmark सेट किया था अपनी एरा में, Hmm. और वही लीगेसी वो आगे भी लेके गई हैं. तो उसी तरीके से वो सब चीजें हम सोचते हैं, बट एज एन एक्टर मेरा काम है वो सोच के उनको डिलीट करना. Hmm. एंड देन ओनली आई बी एबल टू परफॉर्म विद हर. अदरवाइज अगर मैं उनसे हमेशा ऑ में ही रहूंगा, तो देन वो परफॉर्मेंस में भी नहीं आ पाएगा. Okay. अगेन कहीं ना कहीं चीजें बहुत सिमिलर ही थी. शी जी. इज प्लेइंग अ सीनियर, आई एम प्लेइंग अ जूनियर. जी. And in real life also, she's Yeah. very senior to me. I'm a, not junior actor. Obviously, I'm Yeah. a newcomer. Yeah. But Yeah. वो 4 साल पहले I'm a newcomer. I was a हाँ. newcomer, but now I've done a couple of shows. अब मैं अपने Yeah. आप को न्यूकमर नहीं बोलता हूँ. कई बार मुंह से Yeah. निकल जाता है, फिर याद आता है यार 14 साल हो गए, अब कौन सा new. अब तो हो गया है. बट ठीक है, दिस इज हाउ लाइफ इज. एंड जी. आप सोचते हो कई सारी चीजें. अभी रिसेंटली मैं सोच रहा था यार कितना साल हो गया. अजले वो शिट 14 years हो हाँ. गए. चलो बहुत अच्छी बात है. तो या तो उनके साथ जब फर्स्ट टाइम मैं मिला था करिश्मा कपूर के साथ, तो ऑब्वियसली आई वाज इन ऑ कि अरे वाह, हम्म. बहुत मजा आएगा. बट जैसे उन्होंने मुझे वेलकम किया, और जी. जिस तरीके से एक बॉन्डिंग बिठाई, जी. और वो हमेशा मेरे भी हाथ में, ऑब्वियसली हाँ. इट्स एक्शन रिएक्शन. बट वो हमेशा, आई फील आई एम अ इंट्रोवर्ट. मेरे लिए ओके. ना दूसरी तरफ से एक बार अगर हो जाता ना कि यस, यू नो, आई एम या. कंफर्टेबल अराउंड यू, या. तो मेरे लिए बहुत इजी है. देन आई एम अ ओपन बुक. आई एम अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन. आई ओके. डोंट कीप थिंग्स इन माई हेड, लाइक यहाँ से यस. सीखा. मतलब आई डोंट गो एंड सेंसर देम आल्सो. तो वो सारी चीजें बहुत जरूरी होती है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन सच जी. अ इंटेंस डार्क स्टोरी. ओके. तो आपको वहां तक पहुंचना है. और कई सारे सीन्स हमने साथ में शूट किए हैं जहाँ पे बहुत डार्क है, मर्डर हुआ है, देयर इज ब्लड ऑन द फ्लोर, एंड आप वहां पे जा रहे हो एक साथ, तो वो कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग दिखनी चाहिए, वो डायनेमिक दिखना चाहिए. एंड आई आई फील कि वो उनकी तरफ से बहुत अच्छे से मेरे लिए एक उन्होंने एक कंफर्ट जोन क्रिएट किया जी. जिसमें जी. मुझे बहुत मजा आया. एंड सेम वे आई थिंक वो भी कहती हैं कि यू ऑल्सो हैव क्रिएटेड अ कंफर्ट जोन. सो या इट्स वाइस वर्सा. Okay, lovely. Also, you know, for you, Surya, how has
OTT been a game changer. This medium, this format, the kind of content that is coming on OTT platforms. आपके career के लिए, how big of a game changer is it, and has it been? It is a game changer because initially when I shifted to Bombay, um, I was in Barryjawn Mhm. acting school and I did my diploma. So तब तक मैं एक bubble में था. I gave my 100% also. Everybody, liked my work. They were like, you will do good. So learning every day कि अच्छा you will do good, अच्छा हो जाएगा, तुम कर लोगे crack. So I was thinking कि after 6 months, definitely some director will come to me and give me the Mhm. script and come, let's shoot together. Yes. But वो bubble था. वो bubble burst हो गया right after finishing my diploma. Then I was like, अरे यार, now what to do? Mhm. मतलब काम तो करना है. Money, right now money doesn't matter because I'm living my life all alone. Mhm. मैं डबल मेहनत करके भी पैसे कमा रहा हूँ, बट मुझे काम मिलना चाहिए. Mhm. Going to the market, seeing things, it was not easy. First मेरे ऑडिशन पे जिसने ऑडिशन लिया था उसने मुझे बोल दिया था कि यू गो बैक टू हिमाचल. यार क्या कर रहा है यहाँ पे, पैसे बर्बाद करेगा अपने बाप के. तो लिसनिंग सच हार्श वर्ड्स मेड मी वेरी यू नो लो इन लाइफ. बट उसके बाद अगेन मेरा फैमिली सपोर्ट था. कहीं ना कहीं जी. वो एक डेढ़ हफ्ते में मुझे समझ आया कि इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. I हाँ. have to go out and work really hard if I really want to stay here Yeah. or I want to make my name in this city. I started giving auditions, this करते करते बहुत सारे audition दे दिए. Got my first break on TV. तो जब Mhm. मैं टीवी सेट पे गया तो then I understood कि how film making really works. Mhm. कि Mhm. क्या एक एटमोसफेयर होता है. जी. और वो भी एक एपिसोडिक था. 1 मिनट की मेरे को ब्रेक मिली थी उसमें, टीवी शो में. तो 1 मिनट के लिए ही मैंने आना था और चले जाना था, लाइक अ जूनियर आर्टिस्ट. Mhm. तो वहां से मैंने सोचा यार दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न. Let's earn small amount and go Yeah. to TV set and learn. Yeah. और वहीं से वो सब चीजें हुई. मैं Yeah. कम से कम 1.5 साल में मैंने 13 कैमियो रोल्स किए, छोटे छोटे, जी. काफी अच्छे अच्छे सीरियल्स में की. जी. Once I was like कि now I know the marking, Yeah. I know Yeah. the camera angle, I know the lenses, I know the lighting. Yeah. I'm ready, Yeah. and I want to go for films. Yeah. तो वो 1.5 साल करने के बाद मैंने इतना थोड़ा बहुत अमाउंट इकट्ठा कर लिया था कि जहाँ पे मैं 6-7 महीने नहीं भी कुछ काम करता तो मैं रह सकता था. बिकॉज जी. अकेले रहना है, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. बिल्कुल. आप भी रिलेट करेंगे, आपने भी अपनी यंग लाइफ बिल्कुल. में ब्रेड ऑमलेट खा के 3 दिन निकाले हुए हैं. बिल्कुल. सेम सभी ने किया है. तो इसलिए इसमें भी मजा है. एंड बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव बट कहीं ना कहीं मुझे मजा आने लगा था रिजेक्शन में. अच्छा. मुझे फियर नहीं रहा था किसी भी चीज का. हाँ. मुझे जब कोई रिजेक्ट करता तो मुझे ये फील आता था कि वो मुझे इसलिए रिजेक्ट नहीं कर रहा है कि मुझे काम नहीं आता. जी. वो मुझे रिजेक्ट इसलिए कर रहा है कि अगर इसने काम दे दिया तो मैं इससे बड़ा बन जाऊंगा. और वो गुड. एक, गुड साइकोलॉजी. यस. यस. हाँ मतलब आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना हाँ. पड़ेगा हाँ. बॉम्बे में. अगर मैं 4 ऑडिशंस देने जा रहा हूँ उसमें से 3 मुझे बोल रहे हैं कि नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट इवन लेटिंग यू एंटर द ऑफिस. हम्म. कितनी कर बेइज्जती हो सकती है इंसान हम्म. की. वो टॉप लेवल है ना. हम्म. अब उससे ऊपर तो बेइज्जती क्या ही कराएगा इंसान. हाँ. तो अब वहां तक तो हम पहुंच चुके थे. तो उसके बाद भी जब भी रिजेक्शंस आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिविंग ऑडिशन टू हाँ. सम रोल और वो नहीं गो थ्रू हो रहा है, तो आई डोंट फील सैड. या. आई फील कि ओके, आइदर इनके पास मुझसे अच्छा एक्टर होगा जी. या फिर इनको ये चीज का फियर होगा जो मैंने आपको बताया. बिल्कुल. और मैं दोनों में बिलीव करता हूँ. व्हाट्स माइन इज माइन. बिल्कुल. जो आपका है वो आपका है. मैं आपका नहीं ले सकता आपसे, हम्म. आप मेरा नहीं ले सकते. हम्म. तो अगर किसी और एक्टर को वो चीज मिल रही है, वो काम हो रहा है, तो वो उनका है. जी. और इसी माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ता गया. जी. लकीली ओटीटी का इंट्रोडक्शन हो गया टू आर जी. दिस थिंग बॉलीवुड. जी. और हमारी इंडस्ट्री में जब ओटीटी आया था तो पता चला कि एकदम से धड़ाधड़ शोज बनना शुरू हो गए. तो जो फर्स्ट मैंने शो क्रैक किया था वो ऑडिशन के थ्रू ही किया था. आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी लो टाइम इन माई लाइफ. जी. ये सब कहना बहुत इजी है बट हर रोज मैं टूट रहा था उस टाइम पे.
मैं एवरी समझ डे आई सकता वाज काउंटिंग आवर्स एंड डेज की आज एक दिन बीत गया, आज एक दिन बीत गया, आज हूँ। मैं डैड से बात करता हूँ, आज मैं पापा को बोलता हूँ। हम्म, मैंने सुबह पापा से बात की कि अभी आई थिंक आई एम डन, आई थिंक अभी मेरे से हो नहीं पा रहा है। मतलब वो टीवी शोज जो किए थे, वो हम्म, जो लर्निंग है वो भी फेड हो जाएगी डैड। अभी मुझे 1 साल हो गया है फाइंडिंग वर्क, नथिंग इज हैपनिंग, हम्म, ओटीटी भी आ रहा है बट आई एम नॉट एबल टू क्रैक इट। yeah, तो ही वाज लाइक कि देख तूने इतना टाइम दिया है हाँ, तो थोड़ा टाइम और दे के देखना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो तू घर आ जा, थोड़ा टाइम यहाँ रह, चिल कर और वापस चले जाना। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है चलो, आई एम नॉट श्योर कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, वो थॉट मेरे अभी नहीं है, बट आई रियली वांट टू मूव आउट ऑफ बॉम्बे राइट नाउ yes, बिकॉज yes, वो मुझे कहीं ना कहीं अकेलापन, सो आई लाइक टू लिव अलोन। हम्म, एंड अब तो मेरी फैमिली है ऑब्वियसली, हम्म, अब वो चीज नहीं हो सकती है and हम्म, अभी मैं चाहता भी नहीं हूँ बिकॉज मेरा ही डिसीजन था एंड आई वांटेड माय फैमिली। yes, बट आई लाइक माय स्पेस, आई लाइक okay, टू सिट अलोन, आई लाइक टू यू नो वॉच अ फिल्म अलोन okay, नाउ विद माय वाइफ। yeah, आई लाइक हर कंपनी, मेरे yeah, लिए वही बेस्ट yeah, फ्रेंड है, वही मेरी पार्टनर है। जी, मैं कहीं बाहर नहीं जाता एंड ये सब चीजें तब भी थी, तब हम्म, भी मैं अकेला ही रहता था। जी, मुझे कहीं ना घुटन होने लग पड़ी थी एंड देन okay, आई लाइक यार नाउ व्हाट टू डू। yeah, एक कैसे काम कर रहे हैं लोग, मुझे क्यों नहीं काम मिल रहा है, अगेन वो सारे क्वेश्चंस आ गए थे जहां पे मैंने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग किया था। हम्म, और मैंने कोई एक ऑडिशन दिया होगा हॉस्टेजेस का, हम्म, अभी कोई याद रहता नहीं है, इतने आप ऑडिशन दे रहे हो दिन में 4 से 5। ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 2016-15 की। जी, जी, तो 10 साल हो गए, हाँ, या तो एक दिन कॉल आ गया और डैड से बात करने के अगले दिन की बात है। okay, कि आपका रोल फाइनल हो गया इन yes, हॉस्पिटल। आई वाज yes, वेरी हैप्पी, आई वाज लाइक थैंक गॉड समथिंग यू नो गुड इज yeah, हैपनिंग विद मी। yeah, वो ही एक lovely, मोटिवेशन थी, और उस दिन के बाद से मैं भूल गया सब कुछ। जी, ना मुझे भूख लग रही थी, जी, ना मुझे मतलब ऐसा था कि अरे मुझे आई हैव टू ड्रेस वेल। जी, 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 आई वाज लाइक मुझे ये बताओ काम क्या करना है, मुझे ये बताओ स्क्रिप्ट में क्या है, हाँ, मुझे ये बताओ कि हम शूट कब शुरू करें। हम्म, और वो शूट शुरू हुआ विद सुधीर मिश्रा सर हम्म, एंड ही लव्स मी। हम्म, वो भी मेरे लिए, मैं एक ब्लेसिंग लेता हूँ कि मैं जिन भी डायरेक्टर के साथ काम किया है, दे ऑल लव मी। अमेजिंग, और वो मैं कहने की मेरी पर्सनैलिटी है वैसे, मतलब आई एम कमिंग फ्रॉम हिमाचल, आप तो गए भी हो, तो वहाँ पे हाँ, जिस तरीके का कल्चर है, हाँ, पीपल आर वेरी कल्चर्ड देयर, सो मैं भी मतलब मेरा मिलना जुलना, मेरा सुबह का गुड मॉर्निंग बोलना, ये सब करना, वो कोई मेरे लिए वो नहीं था कि आई एम डूइंग दिस हाँ, फॉर समथिंग कि वो मुझे और काम देंगे। बट दिस इज माई कल्चर, और ये वही होता है जहाँ पे आप, मैं कुछ कर रहा हूँ और आप भी मुझे इन रिटर्न दे रहे हैं। अमेजिंग, जी, जी, वहां पे नहीं हो पाएगा, आप सूर्य को वहां उस सभा में बैठे ही नहीं देखोगे जहां पे सूर्य की रिस्पेक्ट नहीं होगी। ये मैं बहुत स्ट्रांगली लेके आया था फ्रॉम माई ये डैड। ये हिमाचली ट्रेट है, बिल्कुल, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल, हिमाचली ट्रेट है, और मेरे फादर ने बोल के भेजा था कि बेटा भूखे रहेंगे कोई चक्कर नहीं है, बिलो डिग्निटी हम काम नहीं करेंगे। जी, अब वो तो कई सारी चीजें होती हैं जो हार्ड वर्क में हम उसको चेंज कर देते हैं, और या जी, हम उस जी, चीज को हम बोलते हैं कि अरे दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हार्ड जी, वर्क। जी, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ हार्ड वर्क। yeah, बिलो डिग्निटी ना मैं तब गया, ना मैं अभी जाऊंगा, ना आने वाले टाइम में। आई एम अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, yeah, आई गिव फुल रिस्पेक्ट। yeah, और इन रिटर्न आई ऑल्सो फील कि आप दें, अगर आप नहीं देंगे तो इट्स ओके, आप यूज लिव योर लाइफ, आई लिव माई लाइफ। बिल्कुल, एंड सुधीर सर के साथ मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, जी, और हमने 2 सीजन हॉस्टेजेस के किए जी, एंड आई जी, बिकेम हिज लवली स्टूडेंट। okay, फ्रॉम देयर अनदेखी yeah, हैपेंड, वो yeah, अपलॉज ने ऑब्वियसली, सो हॉस्टेजेस हाफ शूट तो मैंने मास्क हाँ, में किया था, आई वाज हाँ, ओनली वर्किंग विद माय आईज। हाँ, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है सब आई से दे रहा हूँ, बीच में कभी हाँ, मास्क उतारता था, एक सीन हाँ, करता था, फिर देन फटाफट हाँ, मास्क में पहन लेता था। हाँ, तो वो सब चीजें चल रही थी। तो आई okay, वाज लाइक नो फेयर इनफ, मैं मास्क में ही कर लूंगा, और हाँ, मतलब मेरे को मजा ही आ रहा था उसमें भी। हम्म, तो वहां से वो करते करते 3-4 महीने जो हमने शूट किया, तो आई थिंक अपलॉज ने कुछ तो देखा होगा, सोचा हम्म, होगा कि अच्छा ये लड़का कुछ तो हम्म, कर रहा है अलग। बिकॉज मेरे लिए वही एक चांस था कि गिव यू 100% और गो बैक होम। हम्म, तो मैंने तो अपने को पूरा जान झोंक दी, लाइक अभी तो यही है। तो वहां से अनदेखी मुझे मिला, एंड फ्रॉम देयर
my journey started. Yeah. Actual journey started. And या and the कि rest. वो होता है ना कि आपको स्क्रिप्ट आएगी, हाँ, ऑडिशन नहीं देना, तो हाँ, अनदेखी की स्क्रिप्ट आई थी, ऑडिशन नहीं lovely, दिया था. सो lovely. दैट डे आई And स्टिल रिमेम्बर. या and the rest is history, as they say. और फिर अनदेखी से कितना और काम मिला, भक्षक, and ये काली काली आंखें, we and of course finished now. fourth season of Andekhi. हाँ, It's अभी a big thing, it's a like big thing. for Indian OTT also, like 4 seasons of some Yeah. No, no, it's intense fantastic. thriller. It Yeah. is very hard to maintain the graph. 2026 is lucky for you. अभी वो सीजन 4 आया, Yeah. अभी ये ब्राउन भी आ रहा Yeah. है. Amazing. Okay, we are out of time now, Surya. But Yes. 30 seconds फटाफट, क्योंकि हमीरपुर का हमने जिक्र किया. ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे काटा आपको, कब काटा, याद है? ये बचपन से ही है. और मैं बहुत वैसा वाला स्टूडेंट नहीं था कि जो डिबेट में पार्ट लेता था. मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, बट मुझे स्टेज पे जाके सब बच्चों के सामने कुछ ऐसा डिबेट करना या थॉट्स पढ़ना, उनमें मजा नहीं आता था. सडनली तो 14 नवंबर को एक कंपटीशन होता था, जब मैंने मतलब थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में मैं आया, तो तब से मैंने ये स्टार्ट किया. तो मैंने फर्स्ट टाइम ही परफॉर्म किया, मुझे फर्स्ट टाइम ही मेडल मिल गया, फर्स्ट आया. सो नेक्स्ट डे स्कूल में मुझे वो मेडल सब बच्चों के सामने पहनाया गया, एक छोटी सी ट्रॉफी दी, एक सर्टिफिकेट दिया. तो आई फेल्ट सो गुड. आई वाज लाइक दिस इज समथिंग आई शुड डू. एंड अगेन पेरेंट्स की बहुत हेल्प रहती है. उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, आगे एनकरेज किया कि यू डू गुड इन दिस. एंड मेरे ब्रदर आर्ट में करते थे, उनको आर्ट में फर्स्ट मिलता था और मुझे इसमें मिलता था. तो ये तब से ही शुरू हुआ है. Lovely. Yeah. Lovely. Okay, great. And then, as they say, the journey has now reached this point where you're doing Brown, you're working with Karishma, who you've grown up watching, and let's hope that continues. आगे भी. Thank you so much, Surya Sharma, for Thank you joining us so today. much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Okay. Bye bye. Take care.